امید ہے کہ آپ تمام تر افراد خیریت سے ہوں گے۔ یہ امید نہیں، یہ دعا ہے ان تمام تر کراچی کے باسیوں کے لیے جو اپنی موٹر سائیکلوں پہ نکلیں گے، ان تمام تر غریب اور متوسط طبقے کے لیے جو مہنگائی کے مارے اپنی غریب پرور سواریوں پہ نکلیں گے اور کوئی اندھا ڈمپر ٹینکر ان کو کچل کے چلا جائے گا۔ جنوری سے اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ شہر میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی لگام ڈالنے والا نہیں ہے۔ تازہ واقعہ کراچی کا علاقہ ہے ملیر ہالٹ، یہاں پر ہوا ہے اور یقین جانیے کہ جس نے جب سے یہ جو ویڈیو ہے، ہم کیونکہ حد بندی ہے وہ ویڈیو دکھا نہیں سکتے ہیں، وہ اتنی دل خراش، وہ دل کو دہلا دینے والی ویڈیو ہے، لیکن جنہوں نے سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو دیکھی ہے، مضبوط سے مضبوط دل رکھنے والا بھی اپنا دل، اپنا سینہ، اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا ہے کہ آخر کراچی والوں کا کراچی میں رہنا اتنا بڑا جرم ہے کیا؟ یہ واقعہ بڑا سیدھا اور سادہ سا ہے، ایک ٹینکر ہے اور وہ اسی طرح لوگوں کو مار دیتا ہے، میاں بیوی ہیں، لیکن اس واقعے کی ستم ظریفی یہ ہے، اور اگر ہم اس شخص کی وہ آڈیو اگر چلا سکیں جو یہ کہہ رہا ہے کہ یار اس کو تو بچا لو، یعنی کہ اس کو اندازہ ہے کہ جو اس کے ماں باپ تھے جو مولودگی کا چیک اپ کرانے جا رہی تھیں وہ جان سے جا چکے ہیں، جان جانے آفریں کے سپرد کر چکے ہیں، کوئی بھی نہیں بچ سکا۔ اور یقین جانیے کہ جب یہ ننھی جان جو کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلی گئی، جب یہ اپنے رب کے حضور آج یا جب یہ پہنچے گی تو کس کس کے خلاف شکایت کرے گی؟ اب بقول شاعر میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ میں گورنر سندھ سے یا پھر وزیر اعلیٰ سندھ سے یا پھر ایم ڈی واٹر بورڈ سے یا پھر ڈمپر ایسوسی ایشن والوں سے دست بدست یہ اپیل ہے کہ خدا کا واسطہ اس معاملے کا کوئی تو حل نکالیں۔ ہمارے نمائندے خرم گلزار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خرم، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا۔ خرم، کیا معاملہ ہے یہ جب بھی اس طریقے کی کوئی چیز ہوتی ہے 2 دن 3 دن سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے اس طرح کی جو ہے جنوری سے اب تک کتنی جانیں جا چکی ہیں خرم؟ دیکھیں فیصل بھائی، جنوری سے اب تک گزشتہ روز جو یہ دل خراش ایک واقعہ ہوا، 216 لوگ، 216 لوگوں کا فگر ہے۔ ابھی تو 3 مہینے ہوئے، سال شروع ہوئے ہوئے 216 لوگ، 216 لوگ، اور زخمیوں کی تعداد پہ جائیں تو ہم 2700 سے زائد زخمی ہیں اس میں، 2700، بہت ہیوج فگر ہے زخمیوں کا۔ اس میں بہت سارے لوگ وہ ہیں جو معذور ہو چکے ہیں، اپنے گھروں پر ہیں، مطلب کام پہ جانے کے لیے نکلتے ہیں، کہیں کسی گاڑی نے، کسی بائک کو کسی واٹر ٹینکر نے، کسی ڈمپر نے ٹکر ماری، اگر وہ زندہ بچ گیا اس کی خوش قسمتی ہے، لیکن وہ اپائج ضرور ہو گیا، کسی کی ٹانگ ٹوٹی، کسی کا ہاتھ ٹوٹا۔ 2700 کا ایک بڑا فگر، اسے بھی 2.5 ماہ کہہ لیں اس کو آپ، 3 ماہ بھی پورے نہیں ہوئے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، حادثہ ہوتا ہے، تمام ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ حرکت میں آتی ہے، اور کچھ روز تک ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا ہی اس پہ چیکنگ اینڈ بیلنس رکھا جاتا ہے، گاڑیوں پہ، ٹینکروں کی ٹائمنگ پہ، اس سب کو چیک کیا جاتا ہے، لیکن 2-3 دن بعد جب وہ معاملہ مطلب کہہ لیں کہ مرنے والے کا سویم ہو گیا، جس طرح ان کو صبر آتا ہے اس طرح تو پھر ٹینکر دوسری میت اٹھانے کے لیے چلے گا۔ خرم، آپ نے ایک بات کی اس میں کہ جو اوقات کار فالو نہیں کرتے اور اس طرح کے بھی بہت سارے واقعات ہوتے ہیں نا ڈمپر، یہ تو اپنے اوقات میں چل رہا تھا نا ڈمپر، یہ تو اپنے ٹینکر جو تھا نہیں جناب، یہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مجھے تھوڑا سا کلیئر کریں، ہمیں ذرا رولز بھی کلیئر کرتے جائیں۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ واٹر ٹینکر ہے کیونکہ شہر میں پانی کی ضرورت ہے، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ شہر میں پائپ لائن ہی نہیں ہے تو ان ٹینکر کے ذریعے ہی پانی دیں گے آپ، تو ان کی کوئی حد بندی ہے وقت کی یا پھر یہ جب چاہیں یہ جا سکتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں ان کے لیے ٹائم رات پہلے 11 بجے کا تھا، اب اس کو جب ان سارے معاملات ہوئے اور اس میں ڈی آئی جی بھی چینج ہوئے، احمد نواز تھے پہلے، یہ تمام صورتحال جو ایکسیڈنٹس کی تعداد بڑھ گئی تھی، کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے ہائی وے ٹریفک کو، پھر ڈی آئی جی پیر محمد شاہ کو یہاں پہ لگایا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کمیٹی بھی بنائی تمام چیزوں کو دیکھنے کے لیے، بیلنس کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد ٹائمنگ ان کے مذاکرات ہوئے ڈمپر ایسوسی ایشن سے، ٹرالر ایسوسی ایشن والوں سے۔ اس کے بعد یہ طے ہوا کہ ان کی ٹائمنگ اب 10 بجے کی کر دی گئی ہے، اچھا، 10 سے لے کے صبح 6 بجے تک جتنی بھی ہیوی گاڑیاں ہیں وہ ٹریول کر سکتی ہیں، لیکن شہر کے مخصوص علاقوں میں، بیچ شہر میں نہیں، بیچ شہر میں نہیں کر بیچ سکتے، شہر میں مخصوص علاقوں کی ٹریولنگ ہے، جیسے کہ اگر سائٹ ایریا سے یا ہاکس بے کے ٹرک اڈے سے جو کوئی بھی کنٹینر، واٹر ٹینکر یا پھر ٹرالر نکلتا ہے تو اس کے لیے ناردرن بائی پاس کا ایک روڈ رکھا گیا، جو بنایا بھی اسی لیے گیا تھا لیکن وہ استعمال نہیں ہوتا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ خرم ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، اس وقت ہمارے ساتھ نادر گغل صاحب موجود ہیں۔ نادر صاحب السلام علیکم سب سے پہلے تو، اور بہت شکریہ آپ ہمیں وقت دیتے ہیں ہمیشہ سے۔ ایک اور واقعہ ہوا ہے نادر صاحب، اس سے پہلے بھی آپ سے یہ اسی معاملے پہ بات ہوئی تھی، ایک بار پھر اس طرح کا واقعہ یہ پیش آیا ہے۔
नादिर साहब, ये पीर मोहम्मद शाह साहब है, उन्होंने एक रिपोर्ट भी पेश की है और इस रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने जो 100 में से कम 45 वाक़यात हैं जो कि सिर्फ मलीर में पेश आए हैं। उन्होंने कुछ चश्मकुशा इंकशाफात किए हैं इस रिपोर्ट में, मुझे नहीं पता वो अब तक रिपोर्ट पहुंची या नहीं पहुंची। उन्होंने इसमें सड़क की ख़राबी का तज़किरा किया और उसमें पेडेस्ट्रियन वाले मामलात किए। तो मलीर हॉल्ट में ये वाक़यात इस पे दर पे होना, क्या कहेंगे सर इस पे आप? जी, वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया आपने मुझे बुलाया अपने शो पे। बहुत अफ़सोसनाक वाक़यात हैं ये, और सिंध हुकूमत क्योंकि ये ज़िम्मेदार है पूरे सूबे की, तो ज़ाहिर-सी बात है अगर इस सूबे में किसी एक जान का भी नुकसान होता है तो सिंध हुकूमत इसको बहुत सीरियसली लेती है और इस पे एक्शन भी लेती है। ये इश्यूज़ आप लोगों ने सही पॉइंट आउट किए कि इस साल के सिर्फ़ 3 महीने में ही ये 200-250 से ज़्यादा इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं, जो कि बहुत अफ़सोसनाक है। देखें, अभी लास्ट मंथ ही हमने रोड चेकिंग कमिटीज़ तश्कील दी हैं, जिसमें प्रोविंशियल रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के नुमाइंदगान, ट्रैफिक पुलिस के नुमाइंदगान, एक्साइज़ मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन के नुमाइंदगान उसमें मौजूद हैं। हम तमाम ये जो हेवी ट्रैफिक है इसका जायज़ा ले रहे हैं, इनकी फ़िटनेस टेस्ट करा रहे हैं, ड्राइवर्स की जो स्किल्स हैं, उनके जो लाइसेंसेस हैं, उन सब की स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी की जा रही है। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा देर लग रहा है इसमें, उस दौरान इस तरह के और वाक़यात सामने आ रहे हैं। पीर मोहम्मद शाह साहब से भी मेरी बात हुई है, उन्होंने बल्कि एक और चीज़ बताई कि उन्होंने कहा कि तमाम जो हेवी ट्रैफिक है उनमें हम डैश कैम्स लगा रहे हैं, ताकि जब इस तरह का कोई वाक़या हो तो डैश कैम लगाओ और उससे फुटेज निकाल के प्रॉपर जी। इन्वेस्टिगेट किया। नादिर साहब, कता कलामी की माजरत, डैश कैम वाली चीज़ हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। उस मलीर हॉल्ट जिसके घर में जहाँ ये हुआ है, जो जो भाई जिसका गया है उसको मैं जाके ये बात बताऊंगा ना, तो वो फिर जो मेरे साथ करेगा वो सबको पता है कि डैश कैम लगाएंगे। ये सारी चीज़ें अपनी जगह है। एक और चीज़ है सर, और वो ये कि ये जो एक बहुत ही मतलब कि अलार्मिंग सिचुएशन है, 24 घंटे ये जो डंपर या टैंकर या ट्रक ड्राइवर हैं, इनकी 24 घंटे ड्यूटी होती है, 24 घंटे जागते हैं और फिर अगले 24 घंटे सोते हैं। टेक्निकली इस पे कोई काम किया जा सकता है कि इनके या तो औकात कार तब्दील किए जाएं माजरत, या फिर या तो पैसा बचाने के लिए ये कम ड्राइवर्स रखते हैं जिसकी वजह से ड्यूटी इतनी करते हैं। तो ये जितने बड़े बड़े ठेकेदार हैं उनसे दरख्वास्त की जाए कि अगर आपने अपने पेट भर लिए हैं और अपने अकाउंट भर लिए हैं सर, तो फिर या तो आप मुलाजमीन ज़्यादा, इन ट्रक ड्राइवर्स की तादाद ज़्यादा कर दें ताकि इनको कम से कम 10 घंटे की ड्यूटी करा दें। 10 घंटे भी ज़्यादा है। तो ये टेक्निकली ये काम हो सकता है कोई? जी, बिल्कुल। इन तमाम जो वाटर टैंकर्स हैं, डंपर्स हैं, इन तमाम जो ट्रांसपोर्ट के इदारे हैं, इनकी अपनी इंतज़ामिया होती है, उनके नुमाइंदगान होते हैं, उन सब से हमारी बात चल रही है। सबके अगेन जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि तमाम जो ड्राइवर्स हैं, उनके स्किल्स और ये जो आप औकात की बात कर रहे हैं, इस पे भी बात हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 घंटे, उससे ज़्यादा किसी एक इंसान के लिए मुमकिन नहीं है गाड़ी चलाना। अगर आप अमेरिका में भी जाएँ, वहाँ पे भी 16-16 घंटे चलाते हैं, मगर वहाँ पे क्योंकि इंतज़ाम ऐसा है कि जगह-जगह रेस्ट एरियाज़ होते हैं, पिट स्टॉप्स होते हैं, तो उन 16 घंटे के दौरान भी वो ड्राइवर्स को मौका मिलता है कि वो वहाँ पे तो ख़ैर कॉफ़ी का रिवाज ज़्यादा है, बैठ के कॉफ़ी वग़ैरह पीते हैं, अपने आप को फ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे हमने बात ज़रूर हमारी चल रही है, हमारे मुज़ाकरात इन तंज़ीमों के नुमाइंदगान से कि अपने ड्राइवर्स को या तो जी, आप जी। 8 से 10 जी, घंटे तक जी, ही जी। महदूद रखें। जी, नबी साहब, ये तो मुज़ाकरात चलते ही रहते हैं और आगे भी शायद चलते ही रहेंगे। अभी आपने कहा कि जो भी कोई वाक़या होता है, सिंध हुकूमत उसके ऊपर बहुत सख्त एक्शन लेती है, उसके ऊपर देखते हैं, एक जान भी जाए तो वो ज़ाहिर-सी बात है बहुत फ़र्क पड़ता है। आप ये बताइए, इससे पहले भी हम आपको अपने प्रोग्राम में मद्दू कर चुके हैं, हमने यही बात की थी कि जी हम लॉज़ बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, बन चुके हैं। इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुआ? अगर इम्प्लीमेंट हुआ होता तो ये वाक़या जो कल हुआ है, इतना दर्दनाक, खौफनाक वाक़या, ये ना होता। देखिए, हम तो कितनी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, हम तो ड्राइवर को चाहे वाक़या पे ही अरेस्ट कर लेते हैं, सलाखों के पीछे डाल देते हैं। पर ये तो चलें हुकूमत कर रही है, लोग लोग जो इतना स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, लोग बाकायदा जला रहे हैं इन डंपर्स को, उसके बाद भी
अगर ये वाक़या नबी में साहब, लोगों पे तो नहीं रुकावट छोड़ नहीं आ रही। सकते ना, कि आप लोगों पे तो नहीं छोड़ सकते कि लोग नहीं, लोगों जला पे रहे नहीं हैं, ये छोड़ रहा कर हूँ, रहे मैं हैं। एक एक मैं तो एक बात बात कर कर रहा हूँ रही कि हूँ आपका सिंध सवाल, हुकूमत की। आपके नबी साहब, सवाल से मैं सिंध हुकूमत की आपके बात सवाल कर से रही ये हूँ। इंप्रेशन मिल रहा है कि कोई वाक़या हो जाता है उसके बाद कुछ भी नहीं होता, तो हुकूमत तो ये अरेस्ट कर रही है ना उन ड्राइवर्स को, हम तो ज़ब्त कर रहे हैं उन गाड़ियों को। मगर मैं एक एक्सट्रीम बात बता रहा हूँ कि एक्सट्रीम भी एक्शन लिया जा रहा है, अवाम की तरफ से जो रद्द-ए-अमल आ रहा है, उसके बावजूद भी इन वाक़यात में इतनी कोई कमी नहीं आ रही। इसकी एक वजह मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू साउंड इनसेंसिटिव या ज़िम्मेदारी किसी और पे आयद करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मगर आप भी गाड़ी चलाती होंगी और आपके जो को-होस्ट हैं वो भी गाड़ी चलाते होंगे शहर में। अनफॉर्चुनेटली हमारे रोड्स पे जिस तरह से ये मोटरसाइकिल जो ऐसे करके जो जाते हैं ना, मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ इनके नादिर लिए, थोड़ा साहब, उनको भी ख़्याल करना चाहिए। मैं तो अल्लाह मैं की कसम आपकी है, मैं बात देखता हूँ कि बिल्कुल बच्चों को लेके मैं आपकी बाप, बात बिल्कुल मियाँ बीवी 100% पीछे बच्चा गोद में, बिल्कुल जिस तरह 100% से वो मिनो अन स्टंटमैन की तस्लीम। तरह ड्राइव करते हैं, कुछ नादिर ज़िम्मेदारी भाई, उनके ऊपर भी आयद होगी। 100% मिनो अन तस्लीम। वक्त मेरे ख्याल से इस वक्त ये नहीं है कि मैं मुर्द इल्ज़ाम उन बाइक वालों को चलाऊं, यकीनन उनकी गलती होती है, लेकिन जिस घर से जो चला गया है उसका ये मदावा नहीं हो सकता इस तरीके से। MQM पाकिस्तान के सीनियर नुमा डॉक्टर फारूक सत्तार हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये इस तरह के वाक़यात होना, मैं इससे पहले नादिर गबूल भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन फ़ारूक साहब बहुत ही एहतराम के साथ और बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ आपसे ये गुजारिश है कि शहर में इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। गवर्नर सिंध ने बहुत पहले कहा था कि अब ऐसा नहीं होगा। ये चीज़ें होती जा रही हैं, ये चीज़ें होती जा रही हैं और रुक नहीं रही हैं। बतौर शहर के नुमाइंदा जमात क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, मेरे ख्याल में कल कामरान भाई ने इस सानहे के बाद, जो कि सबसे संगीन सानिया है अपनी इस नौयत का, जो डंपर, कंटेनर, ट्रॉलर या जो टैंकर के ड्राइवर हजरात और वो गाड़ियाँ जिस तरह गैर लाइसेंस याफ्ता, गैर तरबियत याफ्ता और नशे की हालत में धुत दिन के वक्त जिस तरह ये चलाते हैं, कराची की सड़कों पर दंदनाते हैं और इंसानी जिंदगियों से खेलते हैं, खून की होली जो है वो कयामत सुगरा का मंजर है। मुझे बताइए कि यार इससे ज़्यादा बड़ा सानिया कौन सा होगा जो कल हुआ है। देखिए, हमने तो पहले ही कह दिया था, रमज़ान से पहले जब मैंने एक बहुत सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब कहीं जाके हुकूमत सिंध के कानों पे जूं रहेंगी, और एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की जिसमें मुझे इस्लामाबाद से बुलाया गया, ये कह के कि चीफ मिनिस्टर साहब करेंगे, लेकिन वहाँ शर्जिल मेमन बैठे थे। मैंने तो कह दिया कि मैं आपके लिए नहीं आया, मैं वजीर आला के लिए आया हूँ। वो कह रहे हैं कि अरे भाई, इंतजामी मसला है, सियासी है, इंसानी मसला है ये, इसमें हम कोई सियासत नहीं करना चाहते। लेकिन अब मेरे शहर के नौजवानों, बेटे बेटियों के साथ, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों के साथ, अब खुदा के वास्ते इस्लामाबाद वाले भी रहम करे और लाड़काना नवाबशाह वाले भी रहम करें। इस शहर को सिर्फ अपनी कॉलोनी समझकर टैक्सों के जरिए से जो पैसा लिया जाता है वो इसे नहीं लौटाया जाता, और इसके अलावा जो बदनुमानी के जरिए से जो पैसा यहाँ से लोगों से लूटा जा रहा है, हर चौराहे पे ट्रैफिक पुलिस वाला लूट रहा है, हर थाने में SHO और जो उसके ऊपर के लोग हैं उनको पैसा जा रहा है, थानों की पोस्ट, यानी क्या कुछ नहीं हो रहा। मुझे बताइए कि इस तरह कैसे पाकिस्तान चलेगा। ये कराची का मसला महाजिरों का मसला नहीं है, MQM का मसला नहीं है, कराची का मतलब है पाकिस्तान। और ये 150 से ज्यादा वाकयात हो गए। जब कल ये मियाँ बीवी 8वां महीना था, वो हामला थी, प्रेग्नेंट थी, और 15 दिन बाद, ईद के 8 दिन बाद उसके यहाँ डिलीवरी होनी थी, वो आखिरी चेकअप के लिए गए थे। मुझे बताइए, उनके वो बेटी जो थी, अपने बाप की एक इकलौती बेटी, और उसके यहाँ ये पहला बेटा, 1 साल पहले शादी हुई। मुझे बताइए कि क्या किसी को कोई तरस आएगा, किसी को कोई ख्याल आएगा? कोई वजीर आला भी कभी जाएंगे वहाँ पर? क्या बिलावल भुट्टो जरदारी जाएंगे वहाँ पर? क्या आसिफ अली जरदारी जाएंगे, उनके जख्मों पर मरहम रखेंगे? अब तक 150 से ज्यादा लोग जहाँ भाग हुए, किसी एक को कोई कॉम्पनसेशन दिया गया है? किसी एक की जहाँ बहक होने का, शहीद होने का नोटिस लिया गया है? किसी एक कातिल ड्राइवर या जो ये माफिया है, डंपर माफिया, टैंकर माफिया, उसके जो सरगना है और जो उनके पीछे सियासी कुव्वतें हैं, उनसे कोई बासपुर्स की गई है? उनमें से किसी को गिरफ्तार किया गया है? क्या कोई रिपोर्ट दी गई है कि ट्रैफिक पुलिस का इंतजामी मसला है तो एक्सेप्ट करो, तुम्हारी कोताही है, तुम्हारी नाअहली है? ये तो हुकूमत का इख्तियार है ना। अगर इंतजामी मसला भी है तो तुम्हारे अंडर इंतजामिया, DC,
ASC तुम्हारे नीचे, IG तुम्हारे नीचे, ADIG तुम्हारे नीचे, SSP तुम्हारे नीचे, और फिर ट्रैफिक पुलिस तुम्हारे नीचे। अब उसके बाद तुम कहाँ भाग के जाओगे और किसी और पे इल्ज़ाम डालोगे? बिल्कुल फारूक सत्तार साहब, गुफ्तगू आप फरमा रहे थे, आप भी और नादिर गबल साहब आपका भी शुक्रिया। और आखिर में जाते जाते सिर्फ इतना सा है, और खुरम गुज़ार आप भी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। इन वाक़यात पे नज़र रखिए क्योंकि आप लोग ये जो वाक़यात पहुँचा रहे हैं, वरना तो अगर हुकूमत वक्त पे छोड़ दिया जाए तो शायद ये चीज़ें सामने भी नहीं है। सिर्फ आखिर में जाते आते ये कि एक तो ये फारूक भाई ने कहा कि ये जो टैंकर माफिया इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ इतना याद दिला दूँ कि मेरे ख्याल से 3-4 दिन पहले इफ्तार पार्टी में गालिबन MQM पाकिस्तान ने वो की थी इफ्तार पार्टी, उसमें ये टैंकर माफिया के टैंकर एसोसिएशन माजरत के साथ एसोसिएशन के जो सदर थे महसूस साहब, उन्हीं के साथ आप इफ्तार कर रहे थे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब ये बात कहने का वक्त नहीं है कि बाइक वाले क्योंकि यूं चलाते हैं और यूं चलाते हैं इसलिए ये हादसात हो रहे हैं। अगर बाइक वाले यूं चलाते और यूं चलाते तो वो ट्रैफिक पुलिस पकड़े जो इस वक्त सड़कों पे, जो इस वक्त माजरत के साथ ईदी मुहिम पे लगी हुई है। अगर वो ट्रैफिक पुलिस उन बाइक वालों को उसी वक्त पकड़ ले तो शायद इस तरह के वाकयात ना है। क्योंकि वो ईदी मुहिम में लगे हुए हैं इसलिए बाइक वाले ना हेलमेट पहनते हैं और जिग जैग चलते हैं। और माजरत के साथ ये वक्त नहीं है ये बाइक जिग जैग वाले मामलात बताने का, क्योंकि जिसके घर से वो बच्ची चली गई, जिसका 15 दिन बाद ये बच्चा घर पे जो है दुनिया में आना था, जिस भाई का वो भाई चला गया, जिसकी शादी को 1 साल हुआ था, अगर हुकूमत वक्त मरहम नहीं रख सकती तो कम से कम ये चुपते हुए निश्तर भी ना चलाए। ये शहर कराची इसको जीने दे, खुदारा इस शहर के साथ ऐसा जुल्म ना करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।